So hello everybody, one and all. Today we are going to discuss the fifth phase of evolution of public administration. Before this, we have studied the meaning of administration. What is the difference between administration, management, organization? We also understood the meaning of public administration and various definitions we have discussed in detail. Then we started with the evolution. In that, we have studied the first phase, which was about the politics administration dichotomy. Then we studied the second phase, which was about the evolution of public administration's principles, general principles. In the third phase, we discussed about the challenges and criticism which were faced by public administration. A lot of criticism where politics and administration dichotomy was disregarded. At the same time, the principles were discarded, that no such principles exist which can be applied all through different societies, different countries. Then we studied in the fourth phase with respect to crisis of identity, where some people try to go to management side, some people try to go to political science. And finally, now we will be discussing the fifth phase in detail. All right. So in the fifth phase, here 1970 onwards, public administration evolved as an independent discipline. एक independent discipline करके evolve हुआ public administration, which was quite essential after the crisis of identity. So we'll see what happened. Even when the discipline of public administration was at its lowest ebb, it was sowing the seeds of its own renaissance. Couple of factors complementary to each other contributed in this process. The first was the development of interdisciplinary program focusing upon policy science. So basically during the earlier phase as well, when there was crisis, the identity crisis, and after that also, interdisciplinary approach was discussed about, where basically what happened in interdisciplinary approach that any one phenomena needs to be studied with different subjects, different point of views. For example, if you want to make a policy, so look at the law point of view, look at the political point of view, look at the social point of view, look at the economic point of view, look at the cultural point of view, look at the psychological point of view. तो आप एक ही चीज को अलग 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 नजरिए से स्टडी कर रहे हो, अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हो. आप रिजिडिटली एक ही तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग पर्सपेक्टिव्स का इस्तेमाल करके आप स्टडी कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं करप्शन की बात करूं या प्रोस्टिट्यूशन की बात करूं, तो सभी लोगों को जब मैं पूछता हूं तो करप्शन प्रोस्टिट्यूशन के बारे में आपका क्या कहना है, तो एवरी टाइम देयर इज अ नेगेटिव रिप्लाई व्हिच इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि ये दोनों चीजें सोसाइटी में रिक्वायर्ड नहीं है. ऑलराइट, बट व्हेन यू लुक एट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि करप्शन से होता क्या है, तो आप जब किसी को पैसा खिलाते हो तो आपका काम जल्दी हो जाता है. सो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि जो लोग देते हैं पैसे उसको जल्दी काम करते हैं. Culturally speaking, it is not something which is a new phenomena. It is a very old phenomena. Prostitution का भी obviously कोई भी support नहीं करेगा, कोई भी नहीं बोलेगा उसको legalize करो. लेकिन at the same time, some women who are very poor, वो उसमें चली जाती हैं बेचारियाँ because उनको पैसा मिलता है उसमें. And at the same time, the normal girls safe है रोड के ऊपर. Otherwise ऐसा लोग मानते हैं कि अगर prostitutes नहीं होते तो बाहर रेप का रेट बढ़ जाता. Well, I don't agree with that kind of perspective, but still, ऐसा भी कोई लोग बोलते हैं, उसके लिए भी कुछ फैक्चुअल डेटा है जिसके ऊपर रिसर्च किया गया है. सो हर एक पर्सपेक्टिव को जब आप अलग अलग एंगल से पढ़ते हो तो उसको हम ओवरऑल समझना चालू करते हैं. कई बार अगर मैं बोलूँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, सभी को लगता है सेम ही है. नहीं, शेड्यूल कास्ट अलग लोग होते हैं, शेड्यूल ट्राइब अलग लोग होते हैं, दोनों के अलग प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के अलग सोल्यूशंस हैं, दोनों को आप सेम ट्रीट नहीं कर सकते. ठीक है, सो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द सेम कंसेप्ट, लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टडी किया गया. ठीक है. देन इन दिस रिगार्ड देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट इंटर-थ्योरेटिकल linkages. The first is politics administration union, where initially in the first phase we know that the politics and administration dichotomy was discussed about, but we know that it was rejected in the third phase. But now whenever you study with respect to public administration, both of them are considered to be together. दोनों का यूनियन है. ठीक है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का दोनों पॉलिसीज बनाने में और दोनों पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन करने में दोनों का हाथ होता है. ठीक है.
उसके बाद इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्लुएंस कि अभी जैसे मैंने कहा इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, तो अब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए कि अगर आप जब कोई पॉलिसी बनाते हो तो उसके पहले बजट जरूरी है, कितना पैसा लगेगा, और वी हैव टू आल्सो थिंक अबाउट सर्टेन डिलेज, अगर डिले होता है तो कितना पैसा लगेगा। सो वी हैव टू कीप अ कंटिंजेंसी प्लान रेडी। इफिशिएंसी होनी चाहिए इकोनॉमिकली, हमने ऐसा कम से कम पैसे में अगर हम ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो भी पर्सपेक्टिव हमने भूलना नहीं चाहिए। So this is the second linkage, and the third one is organizational theory and administration intermixing. These three linkages were identified, where in the third linkage, it's basically management and administration. देखिए, ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट इज वेरी गुड एट पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट इज वेरी गुड एट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो मैनेजमेंट क्या करता है, अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करता है, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, उसको अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट करता है। गवर्नमेंट तो सरकार अच्छा पॉलिसी बनाता है, मैनेजमेंट अच्छा उसको इंप्लीमेंट करता है। तो इसीलिए आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुंबई में रिलायंस ने मोनो रेल बनाई, तो बेसिकली वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ओनर है, लेकिन किया किसने, पूरा कंस्ट्रक्शन रिलायंस ने किया। चलाएंगे कौन, रिलायंस वाले चलाएंगे, बट एट द सेम टाइम द ओनर्स आर द गवर्नमेंट। अभी पिछले साल नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी की गई, जहाँ पे अगले 4 से 5 सालों के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट की कंपनियां प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर किए जाएंगी, ताकि प्राइवेट सेक्टर उनको उनका मैनेजमेंट, उनकी इफिशिएंसी बढ़ाए। So this is where organizational theory, that is somehow management and administration, दोनों का पर्सपेक्टिव कंसिडर करने लग गए इस फेज में। The second, which was a factor which was responsible for the emergence of public administration as a separate discipline in 1970 onwards, was the emergence of new public administration. New public administration basically was an outcome of the Munich conference, which took place in 1968. It was sponsored by Dwight Waldo. इस कॉन्फ्रेंस में देखा जाए तो देवर मोर एम्फोसिस ऑन वैल्यूज, कि वैल्यूज के ऊपर भी, कल्चर ट्रेडिशंस के ऊपर भी हमें थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाइए, कि आप सिर्फ इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि यू जस्ट कैन नॉट फोकस ऑन efficiency and effectiveness. You also have to look after the values, norms and culture of that society while implementing any policy. All right, so efficiency, effectiveness was the main criteria in the second phase. अगर आपको याद होगा सेकेंड फेज में सबसे ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस दिया गया, लेकिन बाद में अगर आप रियलाइज करोगे तो जैसे जैसे चैलेंजेस हुए, क्रिटिसिज्म हुआ, नई तरीके से जब डिसिप्लिन को फिर से थ्योरेटिकली उसको इवॉल्व किया गया, तब ये समझ में आया कि सिर्फ इफिशिएंसी और इकोनॉमी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है। गवर्नमेंट को समाज के वैल्यू, समाज के नॉर्म्स और कल्चर को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी देयर इज अ वेरी बिग इशू गोइंग ऑन इन कर्नाटका विद रिस्पेक्ट टू हिजाब, कि हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं, पर्दा पहनना चाहिए कि नहीं स्कूल्स में। ठीक है, नाउ दिस इज अ बिग कंसर्न, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि ये ऐसा पर्दा वर्दा कुछ पहनना नहीं है। यू हैव टू, बिकॉज स्कूल एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन इज अ प्राइवेट थिंग, तो आप अपने प्राइवेट लाइफ में जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में आप नहीं कर सकते, ऐसा कर्नाटका ने कहा है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल्स फाइल किए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की जा रही है, आर्टिकल 25 का एलॉबरेशन किया जा रहा है। तो ये बहुत, यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन देगा, क्योंकि वो कभी ना कभी तो ये मैटर सुनने वाले हैं, क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ये मैटर सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। हम फ्रांस की तरह या बेल्जियम की तरह आउटराइटली हम पर्दा सिस्टम को बैन नहीं कर सकते, हमारे देश को चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे देश एक डाइवर्स कंट्री, उनकी तरह नहीं है, हमारी कंट्री बड़ी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। सो ऑब्वियसली ये वैल्यूज कंसीडर करके दिस वाज एम्फसाइज्ड इन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एनपीए। Besides, it lays stress on relevance, social equity, and change. Relevant to your society. Relevance का मतलब it has to be relevant to the people whom you are targeting. People of Rajasthan will be having a different perspective than the people of Tamil Nadu. People of Tamil Nadu will be having a different perspective than Northeast. Northeast is different than Jammu and Kashmir. Every person, आप जो लोगों के साथ आप नियम बना रहे हैं या जिन लोगों के ऊपर पॉलिसी बना रहे हो, उनके रिलेवेंट पॉलिसी होनी चाहिए। At the same time, there has to be social equity. That means not equality. Equality nahi, equity where you are
reasonably classifying people and discriminating them amongst them so that the vulnerable sections of the society are taken care of. And obviously you have to bring about change in society. हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी नॉट इन अ लिटरल सेंस बट इनडायरेक्टली फॉलो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कहीं पे भी कंट्रोवर्सी हो जाती है छोटी मोटी देखी, चाहे फिर वो बैन ऑफ काउ स्लॉटर इन महाराष्ट्र को लेके जो मॉब किलिंग्स हुई, ऑनर किलिंग्स हुई, नॉट विद रिस्पेक्ट टू काउ स्लॉटर बट ऑनर किलिंग इज विद रिस्पेक्ट टू इंटरकास्ट मैरिजेस। उसके बाद सरोगेसी का इशू, नॉट दिस नीड्स चेंज। दैट मीन्स हमारे समाज में लॉज बनने चाहिए इन चीजों के ऊपर। जब और ये जब आप लॉ बनाओगे तो हमारे इंडियन वैल्यूज को कंसिडर करके करना पड़ेगा, क्योंकि सरोगेसी फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्री में इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि कोई भी औरत अपना वूम रेंट पे दे सकती है और वो अपना बच्चा पैदा करके दे देगी, हैंड ओवर कर देगी। लेकिन इंडियन वैल्यूज ये परमिट नहीं करते कि ऐसे कैसे आप कर सकते हो, 3 पेरेंट चाइल्ड कैसे हो सकता है। तो वैल्यूज अलग है, कमर्शियली हम ऐसा सोचते नहीं। ओके, सो द ओवरऑल फोकस ऑफ एनपीए दैट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट वाज टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन लेस जेनेरिक एंड मोर पब्लिक। पहले बहुत जेनेरिक था कि सभी को एप्लीकेबल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, सभी को सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इट हैज टू बी पब्लिक स्पेसिफिक। पब्लिक को ध्यान में रखते हुए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उसका लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब हाँ ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दीजिए, पर कैसे, किसके ऊपर, हु आर द बेनिफिशियरीज, हु शुड नॉट गेट द बेनिफिट्स, ये भी बताना बहुत जरूरी है। अभी होता ऐसा है कि हम पॉलिसीज अभी भी जेनेरिक बना देते हैं कि लोन वेव कर दीजिए, बारिश नहीं हुई, क्रॉप फेलियर हो गया, लोन वेव कर दीजिए फार्मर्स का। लेकिन किस फार्मर्स का? सभी फार्मर्स का, क्योंकि जो बड़े फार्मर्स हैं उनको तो कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं, उनका तो फायदा बैठे बैठे फायदा। जो गरीब फार्मर है मैं समझ सकता हूँ उसको लोन वेव कर दिया। इससे होता क्या कि बैंकिंग सिस्टम में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाते हैं और बैंकिंग सिस्टम का जो शेयर्स होंगे, उनका जो कैपेबिलिटी होगा फाइनेंसिंग, वो कम हो जाता है। और उसके आगे वो फार्मर्स को लोन देने से डरते हैं, भाई क्यों दें, अगर हम देंगे तो लूट जाएंगे भाई, फिर बारिश नहीं हुई तो हमको भी नुकसान होगा, हमको क्या लेना देना इस चीज से। ओके, लेस इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड एंड मोर क्लाइंट ओरिएंटेड। आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको रूल्स रेगुलेशन सिखाते रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में सर आप मुझे दीजिए, मैं फॉर्म फिल करके देता हूँ। आप देखिए गुड प्राइवेट सेक्टर, इवन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अगर एजुकेशन आप फीस पे कर दीजिए, आपके फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म सब 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 वो लोग पे करके दे देंगे। फीस आप सिर्फ फीस पे कीजिए, डोनेशन पे कीजिए, दैट्स इट, आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। गलत बात है, बट एट द सेम टाइम यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हेन पॉलिसी इज मेड, कीप द क्लाइंट और कीप द पब्लिक इन माइंड, not what the government wants, not what the political perspective wants. लोगों को दोनों चीजें बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। लेस न्यूट्रल एंड मोर नॉर्मेटिव, जी हाँ, पहले ब्यूरोक्रेट हैज टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, ब्यूरोक्रेट हैज टू बी इम्पर्सनल, the bureaucrat should not get involved in policy formulation. अभी ऐसा नहीं है। अभी आप जब पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, आप गरीब लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं, वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम. You should feel their pain. You should be emotional. You should invest your emotions into it. अभी ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि जमाना बदल रहा है। आप बस नहीं बोल सकते हाँ टॉयलेट बना लें हम, कंस्ट्रक्ट करके चले जाओ। लोगों को समझाओ, उस टॉयलेट्स का इस्तेमाल करो, नहीं करोगे ओपन डेफिकेशन करोगे, वो ग्राउंड वाटर में जाएगा, आपके लोगों बच्चों को जॉन्डिस होगा, क्लोरेला होगा, या आपकी कोई भी डिजीज स्प्रेड हो सकती है। कोरोना का एग्जांपल दे सकते हैं हम, देखिए कैसे अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है। अपनी इम्यूनिटी लेवल हाई रखिए, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना, इसमें यू शुड बी इमोशनली इन्वेस्टिंग इन दैट पॉलिसी, बट इट शुड बी नो लेस साइंटिफिक। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा सब्जेक्टिव कर दो सब्जेक्ट, इट हैज टू, यू हैव टू मेक ऑब्जेक्टिविटी, यू हैव टू बी नॉन बायस्ड, यू हैव टू बी, you should not have any kind of prejudice. Okay, the above twin intellectual currents compelled the scholars of PubAd to think in terms of academic autonomy by serving their ties both with political science and management. अभी लोगों को समझ में आ रहा है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान देना है। तो जो फोर्थ फेज में वो पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट की तरफ अपने आप को इन टच रखने की कोशिश कर रहे थे, वो तोड़ दिए रिलेशंस। नहीं, पॉल साइंस भी नहीं चाहिए, मैनेजमेंट भी नहीं चाहिए, अभी हमारा अलग डिसिप्लिन है, एनपी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। This in turn made the public administration proud as they started asserting that their profession is useful to the society. All these developments led to the rise of an independent field of public administration. अभी because उनको एक दिशा मिल गई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की वजह से उनको एक दिशा मिलने की वजह से they were happy.
कि हमारा अलग से डिसिप्लिन है. So they did not felt the need to be in touch or to have threads with pol science and with management. All right. उसके बाद in this backdrop in 1970 National School of Public Affairs and Administration was established, which comprises of institutions of higher learning of different countries offering courses on major public administration programs. तो अभी एक नई एक इंस्टीट्यूशन खड़ी कर दी गई, that is National Association of Schools of Public Affairs and Administration. यहाँ पे अलग अलग शहरों का अलग अलग कंट्रीज का स्टडी करने लग गए एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम. ठीक है. नाउ दे स्टार्टेड स्टडीइंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सो दैट कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर फिर से एम्फेसाइज देना चालू कर दिया, ताकि ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाए एडमिनिस्ट्रेशन में जिससे उस कंट्री को फायदा हो. बिकॉज यू कांट हैव द सेम पॉलिसी फॉर जापान एंड इंडिया, दोनों का अलग पर्सपेक्टिव. It is worth mentioning that over the years, the efforts of NASPAA has led to the increase in the number of separate departments of public administration considerably. Even more and more pol science departments are joining this association. कि political scientists भी अब इस association में join करने लग गए कि भाई, क्योंकि जब कभी भी सक्सेस मिलता है तो सभी लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं. तो अभी सडनली आफ्टर 1970s व्हिच वाज जैसे एक अलग से डिसिप्लिन एस्टैब्लिश हो गया, इतना प्रोग्रेस हो रहा है. एंड सी दिस वाज अ प्रैक्टिकल फील्ड कि एक्चुअल कैसे इंप्लीमेंट करना है. नोबडी केयर्स अबाउट थियरी एनीमोर कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए, क्योंकि तब तक सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन बन गए थे. क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 काफी देशों को आजादी मिलने की वजह से सभी देशों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने थे. कौन सी टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम हमने बनानी चाहिए उसके ऊपर भी सोच विचार चल रहे थे. इसीलिए पॉल साइंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम. बट 1970s ऑनवर्ड्स बहुत कम देश थे जो अंडर कॉलोनाइज थे या जो वर अंडर कंट्रोल ऑफ अदर कंट्री. तो अभी इंप्लीमेंट कैसे करें, दैट वाज द मेन फोकस. सो सडनली पॉबैट इंपॉर्टेंट हो गया और आज भी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कितनी भी अच्छी पॉलिसी बना दी, अगर इंप्लीमेंट ठीक से नहीं करोगे तो लोगों को उसका फायदा नहीं होगा. Likewise, the number of public administration programs which are housed in Department of Management or School of Business Administration has declined noticeably. Thus, the formation of NASPAA represented the development of public administration as an independent area of study. जब एक अलग से एसोसिएशन ही एस्टैब्लिश हो गई और वो सक्सेसफुली चल रही, क्योंकि इसके पहले भी एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कमिटी बनाई गई थी, वो डिसबैंड हो गई क्योंकि इन द थर्ड फेज कितने चैलेंजेस हुए, क्योंकि उनका जो फाउंडेशन था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी और प्रिंसिपल, तो दोनों को डिसरिगार्ड कर दिया गया, उनको डिस्क्रेडिट कर दिया गया, तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया. लेकिन इनका अस्तित्व न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होने की वजह से ये बड़े बड़े होते गए. एंड दे वर गिविंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस. दैट्स व्हाई दे बिकम वेरी फेमस. On theoretical side also, due to the impact of NPA, that is New Public Administration, normative questions were being reassessed in this newly emerged discipline. Normative मतलब what ought to be, exactly क्या करना चाहिए. इंडिया जैसे देश में हम चाहते हैं कि there should be poverty upliftment, there has to be employment generation, there has to be hygienic conditions, there has to be clean drinking water, 24/7 electricity in each part of the country, internet connectivity in each part of the country. अभी ये क्वेश्चंस हैं हमारे आगे. अभी फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, किस को एजुकेशन मिल रहा है. अभी लॉकडाउन की वजह से कितने स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, जिनके पास मोबाइल्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है. दिल्ली जैसे स्टेट में अगर दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहा है कि स्कूल हैज टू प्रोवाइड, और दिल्ली के स्कूल बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं प्रोवाइड कर सकते जिन बच्चों को जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, मोबाइल्स नहीं है या स्मार्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं. अगर दिल्ली में अगर ये हालत है, यू कैन इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग इन रूरल एरियाज इन इंडिया. भूल जाओ राइट टू एजुकेशन, वो तो फंडामेंटल राइट है. सो ये क्वेश्चंस बहुत डिटेल में हमने अपने आप से पूछने चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंडियन इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज. सिर्फ फंडामेंटल राइट बनाने से कुछ नहीं होता है, उसको इंप्लीमेंट तो करते आना चाहिए. करेक्ट. The philosophy of neoliberalism provided a powerful base for the setting of public administration in public interest, thereby adding an ethical dimension to it. देखिए neoliberalism मतलब क्या है. आज के डेट में कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल हो गया, लोग चीजें खरीदते जा रहे हैं. तो पहले गांधी जी का ये मानना था 2 शर्ट 2 पैंट 1 चप्पल बहुत हो गया, लेकिन आज हमारे पास कपड़ों का स्विमिंग पूल है, खुद ही मार दो और फिर अरे ये लिया था, पहना ही नहीं कभी, एक ही बार पहना था. इतने कपड़े, इतने जूते, इतने वॉचेस, इतने स्पेक्स, इतने हर चीज का 2-2 कार 4-4 बाइक्स. मतलब आज ये कार लेके चलते हैं, आज ये बाइक लेके चलते हैं. इसमें इथिकल कहीं ना कहीं डायमेंशन जा रहा है.
लोग भूल जा रहे हैं, एथिकल वैल्यूज भूल रहे हैं लोग धीरे धीरे. People in neoliberalism, they don't care about environment, they don't care about the next generation, they are not caring about plantation, trees, environment, biodiversity, they are not taking about the ecological impact. कुछ नहीं सोच रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, कैसे भी करके प्रोडक्शन बढ़ाओ. तो कोल कंजम्पशन, ऑयल कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है. इथिकल डायमेंशन कहाँ है? पैसा कमाना जरूरी है, नहीं मैं नहीं बोलता गलत है, लेकिन किस तरीके से कमा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है. ये इसके ऊपर एनपीएन एम्फेसिस की सही बोल रहे हैं आप, यू आर करेक्ट कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन सही होनी चाहिए, लेकिन क्या वो पॉलिसी की जरूरत है? इलेक्शंस के पहले ऐसे लोग फ्री टेलीविजन, फ्री स्कूटर्स ऐसे बांटते थे. व्हाट आर यू डूइंग नाउ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन दिया था 2014-15 का टाइम था आई थिंक. ऐसा एक पिटीशन फाइल किया गया कि वेयर हाउसेज में खाना सड़ रहा है, फूड ग्रेन्स आर रॉटनिंग इन द वेयर हाउसेज, लोगों को फ्री में बांटते. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को बोला. तब शरद पवार साहब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे. उन्होंने बोला, नो आई एग्री टू दैट, कि लोगों को अगर एक बार फ्री दे दिया ना, हर बार फ्री मांगेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज फ्री देने लगेंगे, स्पेसिफिकली व्हेन इलेक्शंस विल कम. एक बार लोगों को फ्री की आदत की पड़ गई तो वो हर बार वो फिर दंगे करेंगे, फिर कुछ भी, रास्ता बंद रोको, रेलवे रोको, रेलवे ट्रैक्स पे बैठ जाएंगे. वैसे भी देखते हैं, अब रिजर्वेशन हो जाए, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो जाए, फूड प्रोटेस्ट कि भाई हमें खाना फ्री में दे दो, ये हो सकता है. तो उन्होंने बोला नो, हमारी पॉलिसी एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, नॉट ऑफ द जुडिशियल. यहाँ पे किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, हम देख लेंगे. हम रॉटनिंग बिटनिंग, विल इंप्रूव द स्टोरेज फैसिलिटीज, विल हैव स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, हम सब फैसिलिटीज का देख लेंगे. आप खैर आप वो छोड़ दीजिए, इट्स नॉट योर डोमेन, आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कीजिए. सुप्रीम कोर्ट हैड टू एग्री, क्योंकि सही बोला था, फ्री में दे दोगे तो क्या होगा. सो नॉर्मेटिव क्वेश्चंस, नियोलिबरलिज्म, कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल, सभी को बैलेंस, उसके साथ इथिकल डायमेंशन बहुत जरूरी है. इसीलिए लोग टाटा को मानते हैं. रतन टाटा को क्यों रिस्पेक्ट है? बिकॉज इथिकली स्पीकिंग ही इज राइट. दैट्स व्हाई. रजनीकांत को क्यों मानते हैं? इथिकली वो कितना दान धर्म करता है, लेकिन आई कांट टेक नेम्स, बट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फॉर डिफरेंट पीपल. उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे. हाँ है, बड़ा आदमी है, बहुत पैसा है, हाँ, रिस्पेक्ट नहीं. इथिकल डायमेंशन की वजह से. The system theory originated from natural sciences and ecological approach also strengthened the theoretical base of public administration. System theory मतलब क्या? इंडिया एक सिस्टम है. सिस्टम के एक हमारी जस्ट इमेजिन कि इंडिया की जो टेरिटरी है उसकी बाउंड्री है और बाहर का सब कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है. सो एक सिस्टम पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है और उस इम्पैक्ट से हमें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है. जैसे ऑर्गेनिज्म है, हम हमारा जैसे ठंडी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, उस हिसाब से हमारी बॉडी अडेप्ट करती है, बिकॉज दिस इज अ सिस्टम. बॉडी इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम. तो जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ तो हमारा देश एक पॉलिटिकल सिस्टम, करेक्ट. सो उस सिस्टम के ऊपर बाहर के देशों का, बाहर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इन जनरल उसका इम्पैक्ट होता है. कोरोना का इम्पैक्ट हुआ, चाइना में कुछ हुआ, उसका इम्पैक्ट हम पे. 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन हुआ, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर हुआ. ऑयल क्राइसिस हुए, या जब कभी भी ईरान के ऊपर जब अमेरिका ने बैन डाला था, उनके पास ऑयल ले नहीं पा रहे थे, अभी ऑयल के प्राइस बढ़ गए. तो कुछ ना कुछ तो बाहर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो रहा है. WTO ने कुछ रूल बोल दिया, ट्रिप्स में ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हमको हमारा पूरा आईपीआर का रिजीम चेंज करना पड़ा. वी हैव टू अडैप्ट. इसने भी कैसे अडैप्ट करा, इसकी भी अलग स्टडी लगेगी. वो पॉलिटिकल साइंस नहीं कर सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में नहीं. कि अभी ये चेंज हो गया तो कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, वो IAS IPC बनाएंगे. इट विल नॉट बी मेड बाय पॉलिटिशियंस. वो तो भाई यार की क्या हो गया. ठीक है. द साला मॉडल ऑफ फ्रेडरिक्स. फ्रेडरिक्स ने, जैसे मैंने बताया था कि जो बहुत काम किया है इस पर्टिकुलर फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन के, उनका एक मॉडल है साला. has proved an important milestone in this direction. Ricks analyzed interaction between the administration system and its environment in prismatic societies. His prismatic Sala model represents a traditional or developing society, and Sala is the administrative subsystem of it. Prismatic society का मतलब है basically developing countries. ज़्यादा यूपीसी में नहीं जाएंगे. सिंपल लैंग्वेज में प्रिज्मेटिक सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो ट्रांजिशन है, जैसे इंडियन सोसाइटी. वी आर इन अ ट्रांजिशन. और साला मतलब क्या, हमारे हमारे समाज का एडमिनिस्ट्रेशन. दैट इज साला मॉडल. इट्स विच इज अ सब सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे सब सिस्टम है. बैंकिंग एक सब सिस्टम है,
एडमिनिस्ट्रेशन एक सब सिस्टम है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ इंडस्ट्री एक सब सिस्टम है, स्कूल एंड एजुकेशन एक सब, ये अलग अलग सब सिस्टम्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक सब सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रिज्मेटिक सोसाइटी में, स्पेसिफिकली जो सोसाइटीज प्रिज्मेटिक है या डेवलपिंग है। क्यों? क्योंकि ये ही एडमिनिस्ट्रेशन समाज में एक डेवलपिंग समाज को डेवलप्ड समझता है। क्योंकि हम जो पॉलिसी इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे इंडिया में डेवलपमेंट कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। दैट्स व्हाई साला सिस्टम और साला सब सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ डेवलपिंग कंट्री टू कन्वर्ट इनटू अ डेवलप्ड कंट्री। अगर ये लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे और ज्यादा टाइम लगेगा या नहीं होगा। ऐसे कितने सारे देश हैं जो अभी तक पीछे ही। इंडिया पाकिस्तान सेम दिन पे आसपास, वो 14 अप्रैल 14 अगस्त और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट, करेक्ट? लेकिन उनका डेवलपमेंट देखो और हमारा देखो। रीजन? एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। Likewise, Dror's contribution in the field of policy sciences is providing new directions to the discipline. Increasingly, public policy academics and practitioners have utilized the theoretical concepts of political economy to explain political outcomes such as the success or failure of reform efforts. ये ड्रॉर ने क्या किया कि कोई भी पॉलिसी सक्सेसफुल क्यों होती है या फेल क्यों हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। जैसे मैंने आपको सैनिटेशन का एग्जांपल दिया, क्यों फेल हो गई। उसी तरीके से अगर फार्मर रिफॉर्म्स 2020 में जो लॉन्च किए गए, इतने प्रोटेस्ट हुए, वो फेल क्यों हो गए? गवर्नमेंट हैड टू टेक बैक, पीपल डाइड इन दैट प्रोटेस्ट। उसके ऊपर स्टडी किया उन्होंने, जिसके अंदर पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी जो एकेडमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई सोचता नहीं इसके बारे में, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? फिर आपने पॉलिसी बनाते समय सोचा क्यों नहीं कि ऐसा भी रिएक्शन आ सकता है। इट्स नॉट जस्ट कि ऐसा रिज्यूम करके चलना कि हमने पॉलिसी बना दी, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ये गलत अप्रोच है। जो पहले होता था 50-60, जो गवर्नमेंट बोलेगा सब लोग आंख बंद करके मान लेते थे। अभी नहीं है ना, अभी लोग अपोज करते हैं कि क्यों। ये इसका ड्रॉर ने ये रिफॉर्म्स जो सोसाइटी में फेल होते हैं, एंड रिमेंबर सबसे मुश्किल काम किसी भी सरकार का रिफॉर्म्स लाना। जब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट करना था, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का स्ट्रक्चर ही आप अबॉलिश करने वाले थे और जीएसटी लाने, एक ही टैक्स। आज भी मैं कंफ्यूज होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, ये टैक्स, वो, अरे भाई पे क्या कर रहा हूँ मैं? कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा इंडिया में, क्योंकि हाँ ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है। भाई तू कर क्या? लोगों को लगता है ना, एक बार बता ना कितना टैक्स पे करना है, तो आदमी भर देता है। हर 2 दिन के बाद, हर 2 महीने के ये टैक्स रह गया, वो आदमी इन्वेस्ट क्यों करेगा? इससे अच्छा आई गो टू स्विट्जरलैंड, आई गो टू मॉरिशियस, आई गो टू मालदीव, जहाँ पे एक बार भरो बात खत्म, और वो सीक्रेसी भी रखते हैं, इट्स अ टैक्स हेवन। इसलिए जीएसटी वाज अ वेरी बिग टास्क which was successfully implemented at the end. जब स्टेट्स को कहा जाए कि पहले 3 साल जो आपको नुकसान होगा उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करे, तब जाके स्टेट्स माने, बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो ये स्टडी करना कि भाई इसको सक्सेसफुली कैसे इंप्लीमेंट करना, ये ड्रॉर ने किया है। अगेन इट हैड इम्पेटस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। उसके बाद 80s में एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अभी हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखा, लेकिन 1980s में एनपीएम करके एक नई कंसेप्ट है, लेटेस्ट। It was advocated by David Osborne and Ted Gabler in their book Reinventing Government. गवर्नमेंट को रीइन्वेंट, क्योंकि देखिए अभी 1980s धीरे 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 टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बेहतर होता जा रहा है, इंटरनेट धीरे धीरे आ रहा है, कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट। देखो रीइन्वेंट करो। Emphasize the use of private society style models. प्राइवेट सोसाइटी के जो या प्राइवेट सेक्टर के जो काम करने के तरीके हैं ना, वो आप गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। Organizational ideas, values to improve service and service orientation of the public sector. He treated individuals as customers or clients rather than as citizens. हर बार ये पॉसिबल नहीं है। You can't treat people all the time like customers. जैसे there are some educational institution का example देखिए, मैं बताता हूँ। You can't treat students like customers and clients. वो बच्चे हैं, students हैं, पढ़ने के लिए आए, अपना करियर बनाने के लिए आए। तो you can't be that rational. You have to be a little emotional also. बच्चा है, संभालना पड़ता है ना। यू कांट ट्रीट लाइक कस्टमर की। अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप दिए जा रहे हो, तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा, है ना। कि आजकल देखता हूँ मैं नॉर्मली कि भाई बच्चे असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, फिर भी सब मैनेज हो जाता है।
यू आर क्रिएटिंग एन एंटी सोशल एलिमेंट इन सोसाइटी। वो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना, सब कर सकते हैं मैनेज, बस पैसा होना चाहिए, ये एटीट्यूड हो जाएगा उसका। क्या मैंने तो कभी कॉलेज अटेंड नहीं किया फिर भी मैं पास हो गया, तू रोज अटेंड करके तेरे मेरे मार्क्स सेम है, क्योंकि मैनिपुलेट कर रहा है, पैसे दे रहा है। ये नहीं होना चाहिए। फेल करो, तब जब तक फेल नहीं होगा तब तक सीखेगा नहीं। And I have seen extreme cases taken bypass मिल जाता है, ठीक है छोड़ो, अगर अटेंड नहीं किया क्लास 1000 रुपए फाइन पे करो, एग्जाम दे दो। मतलब 1000 रुपए में मैं 3 महीने का अटेंडेंस खरीद रहा हूँ। तो ये जो कर रहे हो गलत बात। इसीलिए एनपीएम का भी एक लिमिटेड एप्लीकेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हर बार आप, हाँ कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, पढ़ाना है तो यस मुझे अच्छा पढ़ाना है, देन यू आर लाइक यू कैन ट्रीट लाइक अ कस्टमर कि पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है एज अ, बट जब द सेम टाइम सबक सिखाना होगा, देन यू आर नॉट योर कस्टमर, बिकॉज कस्टमर इज ऑलवेज राइट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। कस्टमर इज गॉड, दिस कांट बी एप्लीकेबल एवरीवेयर, इज इट? नो, जो कस्टमर बोलेगा वैसा नहीं हो सकता सर, लिमिटेशंस है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका एक लिमिटेड एप्लीकेशन है एनपीएम का। सम क्रिटिक्स कंसीडर इट इनएप्रोप्रिएट बिकॉज पीपल आर व्यूड एज इकोनॉमिक यूनिट्स। इनएप्रोप्रिएट है, आप लोगों को ऐसा पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। And not democratic participants. Nevertheless, the model is still widely accepted at all levels of government की हाँ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने कहा, जब भी अब सर्विस प्रोवाइडर है और कस्टमर उसके पैसे भर रहा है, नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है भाई मैंने फी भर दी, मैंने सब कुछ सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट की, अब तक मेरा आधार कार्ड नहीं है, अब तक मेरा पासपोर्ट चल क्या रहा है भाई, 6 महीने हो गए मैं अटका बैठा हूँ यहाँ पे, मैं डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, मैं आ गया काम नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्विस हैज टू बी गिवन विद प्रॉपर क्वालिटी। Further, in the late 1990s, in response to the dominance of NPM, Janet and Robert Denhart proposed a new public service model known as digital era governance. Digital era, क्योंकि मैंने कहा आपको धीरे-धीरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी। It focused on themes of reintegrating governmental responsibilities and digitalization, exploring the transformation capabilities of modern IT and digital storage. अभी आप देखिए ई-गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन करते जा रहे हैं। आजकल आप घर पे बैठे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, ट्रेन के टिकट्स बुक कर सकते हैं, एरोप्लेन के टिकट्स बुक कर सकते हैं, मूवी के टिकट्स बुक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो टू द ऑफिस एनीमोर। पुलिस कंप्लेंट भी आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज है, डायरेक्टली आपको चालान कट जाएगा। आपका सीसीटीवी पे अपनी गाड़ी का नंबर पकड़ लेंगे और आपको आ जाएगा कितना आपका चालान कटेगा। आपने चालान पे नहीं किया, अगली बार अपनी गाड़ी पकड़ेगी तो वो पैसे आपको कट करके पूरा पैसा लेगा। डिजिटलाइजेशन। And the biggest hurdle for e-governance, the biggest hurdle for digitalization is क्या है बताओ? प्रेजेंटेशन। ई-गवर्नेंस को नहीं बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग कौन है? कौन बोलता है कि नहीं चाहिए डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटर का इस्तेमाल? इलिटरेट। हाँ, वो एक हर्डल है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं ऑनलाइन कैसे इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं है, इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी खुद है। आईएएस आईपीएस ऑफिशियल खुद नहीं चाहते कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, क्योंकि उससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। किसका मेल आईडी था, किसको मिल गया? एक ईमेल आईडी तो एक ही हो जाएगा। बताओ, आपको मेल किया था, आरटीआई एप्लीकेशन मैंने आपको भेजा था, अब तक आपने भेजा क्यों नहीं? सस्पेंड, काटो, सैलरी काटो। उनको नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बिगेस्ट हर्डल इज ब्यूरोक्रेसी टू ई-गवर्नेंस। लेकिन अभी उनको पता चल गया कि भाई ऑप्शन नहीं। बट अगेन एट द सेम टाइम इन कंट्री लाइक इंडिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंपॉर्टेंट। अगर आप सभी जगह, क्योंकि एक कंप्यूटर 4 प्यून का काम करता है, 4 प्यून गए, सरकारी नौकरियां कम हो रही है। ये बैलेंस करना जरूरी है, स्पेसिफिकली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। कितना डिजिटलाइजेशन करेंगे आप, कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? The public choice approach of Vincent Ostrom underlined the fact that an era of state minimalism has started in the 21st century, which demands small but effective government from public administration. इसका मतलब छोटा गवर्नमेंट चाहिए, लेस नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। काम ज्यादा करो। अभी हो क्या रहा है ना, एक काम करने के लिए गवर्नमेंट में 4-4 लोग हैं। आई हैव सीन दैट कि भरे जा रहे हैं, रिक्रूट किए जा रहे हैं, रिक्रूट किए जा रहे हैं लोग। इतना नहीं चाहिए हर जगह पे गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट को पहले एक टाइम था, गवर्नमेंट ब्रेड बना, मॉडर्न ब्रेड करके आपने सुना हो, ये पहले गवर्नमेंट कंपनी थी।
मारुति गवर्नमेंट कंपनी थी, गवर्नमेंट दूध बेच रहा था, गवर्नमेंट ब्रेड बना रहा था, गवर्नमेंट टू व्हीलर बना रहा था, गवर्नमेंट कार बना रहा था, एयर इंडिया भी गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, एयरलाइंस भी गवर्नमेंट चला रहा है। जरूरत क्या है? तब जरूरत थी क्योंकि तब प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं था। अब तो हम धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर, एयर इंडिया टाटा ने टेक ओवर कर लिया। पहले टेलीकम्युनिकेशन में मोनोपोली थी, एक बार समझ गया कि बीएसएनएल हर जगह पे, कर दो उसको प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वहां नहीं जाएगा जहां पे प्रॉफिट नहीं। एयरटेल वाला कभी भी गांव में टावर नहीं लगाएगा, एयरटेल पुणे मुंबई में टावर लगाएगा, रिमेम्बर, अंडमान निकोबार में नहीं लगाएगा, पौंडीचेरी में नहीं लगाएगा, वो मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, चेन्नई, वहां पे लगाएगा, वहां पे पैसा है, वहां पे लोग हैं, इसलिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी। बट जहां पे जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है वहां से गवर्नमेंट ने पीछे हट जाना चाहिए। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पर मॉनिटरिंग करना चाहिए, सुपरविजन करना चाहिए। वरना आपको तो पता है, हर्षद मेहता हो गया, विजय माल्या हो गया, थोड़ा मॉनिटरिंग से जरा नजर हटी, दुर्घटना घटी, लोग बैठे ही हैं चांस मारने के लिए, कैसे कहाँ पे क्या करे और पैसा। ठीक है, तो 21st सेंचुरी में जो गवर्नमेंट कम होना चाहिए, लेस नंबर ऑफ पीपल, बट अभी पिछले साल ही हमने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में अब 4-4 सालों के लिए हम सरकारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने वाले कि आप चलाइए, हम ओनर रहेंगे, आई विल बी द ओनर, आप चलाओ, जो भी प्रॉफिट होगा हम शेयर करेंगे, आई विल बी द ओनर, यू वर्क, ऐसा। क्योंकि अगेन मैनेजमेंट इज गुड एट इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, इसलिए। Another trend which one can observe is that the distinction between administration and management is becoming irrelevant. जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये मैनेजमेंट होता है, ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेट, ये ब्लर्ड होते जा रहे हैं दिन में, क्योंकि ऐसे काफी प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं सोशल सर्विस पे, और सरकारें बहुत हैं ऐसी की जो प्राइवेट काम कर रही है, पैसा के लिए काम कर रही है, ऐसा हो रहा है, ब्लर्ड होते जा रहा है दिन ब दिन। Traditionally, management is broadly concerned with industries and private enterprises, while administration refers to government machinery. ये blurred होते जा रहा है because of public-private partnership. Government and the private sector are coming together and working. अभी पुणे में जो मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये गवर्नमेंट सिर्फ खर्चा कर रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले लोग प्राइवेट सेक्टर के हैं, टेंडर दिए हुए हैं अलग अलग कंस्ट्रक्टर बिल्डर्स को, क्या पर रास्ता, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेट्रो बन रही है, अलग अलग काम किए जा रहे हैं, पुणे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, पैसा सरकारी है लेकिन काम करने वाले प्राइवेट, वहां पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इज मोर इनटू लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ओके, now when government itself is conducting industrial and commercial activities through public enterprises, and private enterprises in turn are adopting more and more bureaucratic system, public and private sector are collaborating with each other in the wake of privatization, the difference between administration and management has become मीनिंगलेस। आज के डेट में वो मीनिंगलेस हो गया, आप डिस्टिंग्विश मत कीजिए। ओके, दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं। एविडेंटली गवर्नमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट एंड द कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस तरीके से फाइनली इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, एनपीए दैट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, and finally at the end digital era governance, minimum government maximum governance करके अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन करके फाइनली एस्टैब्लिश हो, एंड दैट वाज द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट फेज। इसके लिए आप लोग अभी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये लॉ में है, ये यूपीएससी का ऑप्शनल है, आसान ऑप्शनल, like that. So that was about evolution of public administration.